Hello everyone, this is the unknown astrologer. So this video is on the much awaited Guru Rahu combination. So like I've explained in Mars Ketu combination, Ketu is the Karaka of uh, Chidra. It's Chidra Karaka. It diffuses things. It cuts off things. Rahu on the other hand is the exact opposite force of Ketu and it is the Karaka of amplification. Rahu is the amplifier. It amplifies things. Jupiter, on the other hand, is the Karaka of abundance. Whatever Jupiter touches, wherever Jupiter's drishti falls, wherever Jupiter sits, it multiplies things of that house, that bhava, and the planet it aspects. It multiplies the results of that planet. So now, just by these two definitions, that Rahu is the amplifier and Jupiter is the multiplier, if you put two and two together, you will understand that what will happen if the multiplier and the amplifier are conjunct. So it really intensifies, charges up, multiplies, amplifies whichever house it aspects. If these two are together, whichever house falls in 5, 7, and 9 from it, the results of that house and the planets placed in that house will multiply and will become more. By amplification, I mean, just to give you an example, Jupiter will Sun or Jupiter aspecting Sun will give the native multiple father figures, multiple elder males who will help that person in his journey on this planet, other than the biological father. Okay, but if Rahu is conjunct Sun or if Rahu aspects Sun, it does not multiply the number of people, but it will amplify the results of Sun. That means that the father who he has will have an amplified ego. Okay, or number two, even his ego will be amplified. The results of Sun will be amplified, not multiplied. Rahu, Jupiter will multiply, Rahu will amplify. So just by this definition itself, Jupiter Rahu becomes the best combination on the planet in today's times for people who are in material pursuits, because Rahu is the planet of material pursuits. राहु का स्पिरिचुअलिटी से उतना रिश्ता नहीं है. राहु को मटीरियल चीज़ें चाहिए, मटीरियल गेन्स चाहिए, और जुपिटर उन मटीरियल गेन्स को मल्टीप्लाई करता है. ऑन दी अदर हैंड जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो राहु उस ज्ञान को एम्पलीफाई करता है, ज्ञान को मैनी फोल्ड बढ़ा देता है. जुपिटर के रिजल्ट्स को बढ़ाता है, जुपिटर राहु के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करता है. एक और तरीका है देखने का कि जुपिटर इज द कारका ऑफ परमिशन. जुपिटर जब किसी चीज़ को टच करता है तो उसको फ्रूटिफाई होने की परमिशन देता है. जैसे मैंने कि ट्रांजिट वीडियो में बताया था, विच इज़ देयर ऑन दिस चैनल. जुपिटर इन ट्रांजिट कैन ग्रांट परमिशन फॉर एक्सक्लूसिव हैप्पी इवेंट्स ऑफ दैट नेटिव्स लाइफ. So Jupiter is the Karaka of giving you permission or granting permission to do something. But what will you do with the permission unless you have the ambition? Rahu is the ambition. So Jupiter permission, Rahu ambition. एम्बिशन मतलब मटीरियल एम्बिशन, तो राहु के एम्बिशंस को पूरा करने की परमिशन जुपिटर दे देता है. इसीलिए जुपिटर राहु becomes the biggest Raj Yoga. By Raj here I mean a yoga which gives you permission to achieve material objectives in today's day and age. दूसरी बात इसमें यह है कि क्यों इसको खराब कॉम्बिनेशन बताया गया, स्पेशली इन द बुक्स रिटन इन द पास्ट 500-600 ईयर्स. इसलिए बताया जो कि जुपिटर नेचुरल नाइन्थ लॉर्ड है. नाइन्थ लॉर्ड मतलब धर्म. राहु उस धर्म को क्वेश्चन कराता है. धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान धर्म नहीं है. धर्म का मतलब ये भी है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. और जो सोसाइटी की एक डॉक्ट्रिन है, कंडीशनिंग है कि भाई ये काम तो नहीं करना है, आपको क्यों नहीं करना है, अगर उसका रीज़न नहीं है तो राहु जुपिटर वाला उसको क्वेश्चन करेगा. क्योंकि वो क्वेश्चन करेगा, स्टैब्लिश डॉक्ट्रिन को क्वेश्चन करेगा, इसलिए उसको अच्छा नहीं बोला गया. हो सकता है सतयुग में ये चीज़ सही भी रही हो, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन थी वो बहुत सही थी. बट अभी की जो डॉक्ट्रिन है, स्पेशली कलयुग की और कलयुग के बाद अभी की, ये
मिक्स्ड है ये। हर चीज़ अच्छी नहीं है, हर चीज़ सही नहीं है। यहाँ पे डिस्क्रेशन चाहिए, यहाँ पे आपको सवाल उठाना चाहिए। भले ही वो स्टेट की डॉक्ट्रिन हो, रिलीजन की हो, सोसाइटी की हो, या एक घर के अंदर एक फैमिली में जो फादर है वो 9th हाउस जुपिटर अगेन उसके सेट करे हुए रूल्स हों, जुपिटर राहु वाला बच्चा उसको क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए इसको अच्छा नहीं बोला गया, जो कि लोगों को सवाल उठाना पसंद नहीं रहा है समाज में हमेशा से, इसलिए अच्छा नहीं बोला गया। लेकिन वो इंसान जिसके पास ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि राहु के पास एम्बिशन है कि उस चीज़ को क्वेश्चन करो, ज्ञान को क्वेश्चन करो और अपने ज्ञान को बढ़ा लो, एम्बिशन को बढ़ा, अब सॉरी, नॉलेज को एम्पलीफाई कर लो। तो राहु एम्पलीफिकेशन ऑफ नॉलेज करेगा, जुपिटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एम्बिशन करेगा। ये दोनों मिलके चमत्कार करेंगे। एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी कॉम्बिनेशन 15 डिग्री तक ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, 15 डिग्री के बाद हर कॉम्बिनेशन धीरे धीरे करके वीक होता जाता है। लेकिन एक भावुक में या एक राशि में दोनों फोर्सेस के रिजल्ट्स हैं। मतलब कि अगर आपके 10th हाउस में जुपिटर राहु हैं, तो आपके 10th हाउस के पास मल्टीप्लायर भी है और एम्पलीफायर भी है, दोनों का रिजल्ट एक्टिव है, परमिशन भी है और एम्बिशन भी है। लेकिन ये दोनों प्लैनेट आपस में एक दूसरे को कम इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर और राहु बहुत दूर है, मान लो 25 डिग्री दूर है, लेकिन 10th हाउस को कर रहे हैं। और वो राशि जो वहाँ पे बैठी है उस राशि को भी कर रहे हैं। अगर वो राशि मान लो जुपिटर की है, धनु है, तो धनु राशि को दोनों चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, 10th हाउस को दोनों इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट जुपिटर राहु एक दूसरे को कम इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे वो कॉम्बिनेशन 15 डिग्री से दूर होता जाएगा। ओके, अभी इसके ऊपर अगर सैटर्न का ट्रांजिट है, सॉरी सैटर्न का एस्पेक्ट है, या ये सैटर्न के राशि में है, इन दोनों ही केस में परमिशन और एम्बिशन दोनों ही रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ना ज़्यादा एम्बिशन रहेगा क्योंकि जुपिटर वीक होगा, और ना ज़्यादा सॉरी क्योंकि राहु वीक होगा, और ना ज़्यादा परमिशन रहेगी क्योंकि गुरु वीक होगा। और जी हाँ, राहु शनि की राशि में वीक होगा, मकर राशि में कंस्ट्रिक्टेड फील करेगा, कुंभ राशि में नेटवर्क में वो अच्छा करेगा, लेकिन सिर्फ शतभिषा नक्षत्र में अच्छा करेगा। बाकी राशियों में जो जो राहु की टेंडेंसी है कि देखो, राहु क्यों कारक है कुंभ का, क्योंकि राहु, सैटर्न कहता है नेटवर्क बनाओ, और नेटवर्क में एक हायरार्की बनाओ, एक लेवल बनाओ, धीरे धीरे इंसान ऊपर जाएगा। राहु कहता है कि मैं एक बार में ऊपर चढ़ के बैठूंगा। तो राहु उस नेटवर्क में लूप होल ढूंढने का काम करता है, तोड़ता है नेटवर्क को, ब्रेक करता है, छल कारक है, छल से ऊपर जाता है। लेकिन कुंभ राशि में, एक कुंभ राशि एक ऐसा नेटवर्क है जो दोनों ने मिलकर बनाया है, तो उसमें लूप होल्स नहीं है। बट फिर भी मकर राशि में राहु अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर हायरार्की है, वो स्ट्रेट अप हायरार्की की राशि है। कुंभ राशि हॉरिजॉन्टल नेटवर्क है, वेब है, एक मकड़ी के जाले की तरह है, वेब, इंटरनेट, इसीलिए वेब बोला जाता है। इंटरनेट, इंटरनेट कुंभ से है, वो वेब है जो कि एक के ऊपर एक कुछ सब सेम लेवल पे है। तो उसमें राहु फिर भी एडजस्ट कर पाता है और कनेक्शन बना पाता है, बहुत तेज सोशल मोबिलिटी पाता है राहु वहाँ पर। बट मकर में बिल्कुल नहीं, और मकर में गुरु भी वीक है। तो सैटर्न के एस्पेक्ट में, या सैटर्न की दोनों ही राशियों में, मैं कहूँगा गुरु राहु का कॉम्बिनेशन कमज़ोर है। कुंभ राशि में राहु मजबूत है, लेकिन गुरु कमज़ोर वहाँ भी है, तो वो भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी ये दोनों मजबूत हैं, या स्पेसिफिकली गुरु ज़्यादा मजबूत है राहु से, वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हर चीज़ देखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू हाउस एंड एस्पेक्ट एंड प्लेसमेंट। कोई, देर इज़ नो रूल इन एस्ट्रोलॉजी, देर आर ओनली कॉन्सेप्ट्स इन एस्ट्रोलॉजी, बट उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑन दैट पर्टिकुलर हॉरोस्कोप with respect to all other forces which are active, all the 9 planets and 12 rashis and 12 houses, सबको मिला के रिजल्ट निकलता है, निचोड़ निकलता है। बट अगर सीधी सिंपल बात करें तो एक कॉम्बिनेशन अगर आपसे कोई पूछे जो मटेरियल सक्सेस की गारंटी दे सकता है, इफ देयर कुड एवर बी वन गारंटी ऑफ मटेरियल सक्सेस, इफ देयर एवर कुड बी वन, देन दिस इज दैट वन। क्योंकि यहाँ पे मटेरियल एम्बिशन को जुपिटर मल्टीप्लाई कर रहा है, और जुपिटर के विजडम को, अबंडेंस को राहु एम्पलीफाई कर रहा है। दिस इज द बेस्ट, दी बेस्ट। जितना पास होगा
15 डिग्री से कम होगा उतना अच्छा है, एकदम क्लोज भी अच्छा नहीं है कि 1 डिग्री हो, आप सेम डिग्री पे हो, कुछ मिनट्स का अंतर हो, अच्छा नहीं है। थोड़ा सा डिस्टेंस हो लेकिन बहुत दूर ना हो। बहुत दूर होता है तो उस हाउस पे एक्टिविटी है दोनों की, बट एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कम है, ज़ीरो तब भी नहीं है बट कम है। एक यही एकमात्र कॉम्बिनेशन है जो किसी भी हाउस में अच्छा है। समझो इसको कि क्यों, क्योंकि राहु जो है वो 3, 6, 8, 11 में काफ़ी अच्छा करता है। जुपिटर 1, 5, 9, 12, 4 इन सब केंद्र त्रिकोण में अच्छा करता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो हर जगह चल जाएगा। सिर्फ एक हाउस है जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में रिलेशनशिप्स को मल्टीप्लाई करेगा, एम्पलीफाई करेगा। दोनों ही चीज़ें मैरिड लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज़ में शायद वो भी एक्सेप्टेबल है। बट सेवेंथ को छोड़ दें अगर, तो बाकी के 11 हाउस में ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेवेंथ में भी चल जाएगा अगर जुपिटर की राशि में हो रहा है, या अगर मेल है तो वीनस अच्छा है, फीमेल है तो जुपिटर अच्छा है, तो चल जाएगा। लेकिन बाकी सब में तो बहुत अच्छा है। ऐसे लोग रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स में लगे रहते हैं, रुकते ही नहीं है, एम्बिशन ख़त्म ही नहीं होता। और एम्बिशन को पाने के लिए जो नॉलेज की सप्लाई चाहिए वो फ्री फ्लोइंग है, क्योंकि जुपिटर का परमिशन का स्विच ऑन है, नॉलेज तो आती ही जा रही है। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हर कुंडली में 1 साल 18 में रहता है गुरु, 1 साल रहता है गुरु एक राशि में, राहु रहता है 18 महीने, तो ऐसा होगा कि 1 साल ओवरलैप करेगा दोनों का साथ में। तो ऐसा तो नहीं है कि उस 1 साल तक सब सक्सेसफुल लोग पैदा होंगे। तो बहुत से लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस नेगेटिव हो सकते हैं। बट ये अकेला प्रॉब्लम का कारक नहीं है। हमारे इंडिया में पिछले 500 सालों में इसी को दोषी बताया, क्योंकि उनको यही समझ में आया कि ये रॉन्ग नंबर दिमाग में था कि नाइन्थ लॉर्ड विद राहु धर्म से अधर्मी, तो वो अधर्मी की लेंथ से देखने लगे तो यही खराब बोला। लेकिन इसका कोई रिजल्ट शायद नहीं आ रहा हो, या इसकी वजह से ही उसके लाइफ में जो थोड़ा सुख है, जो गाड़ी चला रहा है वो, या जो उसके पास फैमिली है, जो बच्चे हैं, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, वो इसी की वजह से होंगी। और कुछ खराब होगा, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स का आंखों पे पट्टी बंध गई है इस बात से, तो इसी को देखते हैं, मतलब बुरे कॉम्बिनेशन को ही देखते हैं, शनि को ही देखेंगे, हर जगह शनि को ब्लेम करेंगे, या गुरु को या राहु को ब्लेम ब्लेम करेंगे, और कुछ देखेंगे नहीं। जबकि शायद उस कुंडली में बुध की दशा चल रही होगी। बुध इज द नेचुरल सिक्स्थ लॉर्ड, उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई प्लैनेट ही नहीं है। बुध की दशा किसी भी इंसान पे, किसी भी लगन पे, किसी भी राशि लगन राशि कॉम्बिनेशन पे, किसी भी उम्र में आ जाए, 100% ऑल राउंड हैप्पीनेस देती ही नहीं, क्योंकि नेचुरल सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इम्बैलेंस, जो टिल्ट करता है आपके एक्सेस को। 1-7 एक्सेस, 4-10 एक्सेस बैलेंस है, सिक्स टेढ़ा है। हर भाव से सिक्स्थ हाउस उस हाउस की हानि है, एर्थ नहीं है। एर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। एर्थ तो रीबर्थ देगा, रेनोवेशन देगा, रिजुविनेशन देगा, दोबारा से पैदा कर देगा उस भूख को, उस कोशिश को, उस आशा को। सिक्स उस आशा में कीड़ा लगा देगा, बीमारी दे देगा, उस काम को स्लो कर देगा। मरकरी इज द प्रॉब्लमैटिक, नॉट सैटर्न। सैटर्न इज द 10th एंड 11th लॉर्ड। इट विल ओनली गिव यू मटीरियल सक्सेस, पोजिशन, पावर, अथॉरिटी, गेन्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। बट शनि सेज कि धीरे धीरे चलो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। राहु कहता है जल्दी चाहिए। जुपिटर राहु साथ में है, राहु के जल्दी करने की कोशिश को जुपिटर परमिशन देता है, अनकंडीशनल परमिशन देता है जुपिटर। तो राहु उस चीज़ को अचीव करना चाहता है। This is my analysis of Jupiter Rahu. In order to connect with me for a one-on-one discussion, my WhatsApp number is 790-540-1688. Thank you.